Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss seed dispersal and seed bank. Seed dispersal. Seed dispersal is the movement or transport of seeds away from the parent plant. Plants have very limited mobility, thus they depend upon a variety of dispersal vectors to transport their seeds. Seeds can be dispersed away from the parent plant individually or collectively. Dispersal mechanism determines the pattern of seed dispersal. This has importance for the demographic and genetic structure of plant populations. It also has importance in migration patterns and species interactions. Seeds are dispersed to far off places, thus the genes of a population of plants are dispersed to other places. सीड डिस्पर्सल से मुराद पेरेंट प्लांट से दूर सीड्स की मूवमेंट या ट्रांसपोर्ट है। प्लांट्स में हरकत का आंसर बहुत कम है, इसलिए प्लांट्स सीड डिस्पर्सल के लिए मुख्तलिफ डिस्पर्सल वेक्टर्स या एजेंट्स पर डिपेंड करते हैं। सीड्स प्लांट से एक एक करके या कलेक्टिवली डिस्पर्स हो सकते हैं। सीड डिस्पर्सल मैकेनिज्म ही दरअसल सीड डिस्पर्सल पैटर्न के बारे में बताता है। ये प्लांट पॉपुलेशंस की डेमोग्राफिक और जेनेटिक स्ट्रक्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से ये माइग्रेशन पैटर्न और स्पीशीज़ इंटरैक्शंस में भी इम्पॉर्टेंट है। सीड डिस्पर्सल के दौरान सीड्स बहुत दूर तक बिखर जाते हैं। इस तरह प्लांट पॉपुलेशन के जीन्स दूसरी जगहों तक बिखर जाते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सीड डिस्पर्सल। फर्स्ट इज डिस्पर्सल बाय विंड, सेकंड इज डिस्पर्सल बाय वाटर, थर्ड इज डिस्पर्सल बाय एनिमल्स एंड फोर्थ इज डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव mechanisms. Dispersal by wind. Whole fruit or individual seeds may disperse by wind. Such seeds are light in weight and are of following types. First, these are minute seeds. Second, flattened fruits or seeds have wing-like outgrowths. Third, they have feathery appendages. And fourth, they have sensor mechanisms. विंड के ज़रिए से मुकम्मल फ्रूट या इंडिविजुअल सीड्स डिस्पर्स हो सकते हैं। इस तरह के सीड्स वज़न में हल्के होते हैं और मंदरजा झैल टाइप्स के हो सकते हैं। नंबर 1, ये सीड्स बहुत छोटे होते हैं। नंबर 2, फ्लैटेंड फ्रूट्स या सीड्स में विंग लाइक आउटग्रोथ पाई जाती हैं। नंबर 3, इनमें फीदरी अपेंडेजेस होते हैं। और नंबर 4, इनमें सेंसर मैकेनिज्म्स पाए जाते हैं। Minute seeds. The seeds of orchids are very small. They have light and inflated outer covering. These dust-like seeds are blown by the wind for great distance. Wings. In some cases, seeds and other whole fruits are flattened. Some may have wing-like outgrowths. These structures help in dispersal of seeds. Its examples are fruit of ash, maple, etc. ऑर्चिड्स के सीड्स बहुत छोटे होते हैं। इनकी आउटर कवरिंग बहुत लाइट और फूली हुई होती है। ये डस्ट लाइक सीड्स विंड के ज़रिए से बहुत दूर तक बिखर जाते हैं। कुछ केसेस में सीड्स और मुकम्मल फ्रूट फ्लैटेंड होते हैं। इनमें विंग लाइक आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं। ये स्ट्रक्चर्स सीड डिस्पर्सल में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हेल्प करते हैं। इनकी एग्जांपल्स में ऐश और मैपल वगैरह के फ्रूट हैं। फीदरी अपेंडेजेस. Seeds or fruits of some plants may have feathery appendages. These appendages greatly increase their buoyancy. Thus, they are frequently carried by the wind to considerable altitudes.
These feathery appendages are characteristic of seeds of many compositae. कुछ सीड्स और फ्रूट्स में फीदरी अपेंडेजेस हो सकती हैं। इन अपेंडेजेस से बुआयंसी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है। इस तरह से ये विंड के ज़रिए से नुमायाँ आल्टीट्यूड तक फ्रीक्वेंटली चले जाते हैं। फैमिली कंपोजिटी के मेंबर्स के सीड्स में फीदरी अपेंडेजेस पाई जाती हैं। Sensor mechanisms. The capsules of many plants open in different ways. The seeds can escape when capsules are violently shaken by a strong wind. It occurs in fruits like poppy, etc. This mechanism scatters the seeds. Some seeds may have a flat shape or winged outgrowths. They escape when there is a strong wind. Wind blows them to considerable distances. बहुत से प्लांट्स के कैप्सूल मुख्तलिफ तरह से ओपन होते हैं। जब तेज आंधी से कैप्सूल शदीद शेक होते हैं, इससे कैप्सूल में मौजूद सीड्स निकल सकते हैं। ये पोपी फ्रूट में पाया जाता है। इस मैकेनिज्म के ज़रिए से सीड्स बिखर जाते हैं। कुछ सीड्स फ्लैट हो सकते हैं या इनमें विंग लाइक आउटग्रोथ हो सकती हैं। आंधी की वजह से ये सीड्स निकलकर दूर दराज इलाकों तक बिखर सकते हैं। Dispersal by water. Many seashore and aquatic plants disperse their seeds by water. They have different adaptations for dispersal by water. Whole fruit or the seed may be adapted for floating. The pericarp of fruit may be composed of light tissue. In some cases, fruit may be inflated. The coconut is an excellent example of a fruit. It has light pericarp. Floating seeds may contain a mass of light tissue of large air spaces. In the lotus fruit, the torus is a greatly enlarged mass of loose, air-filled tissue. They float radially. Many seeds are not especially fitted for floating. They may occasionally float for short distances. बहुत से साहिल पर पाए जाने वाले और एक्वेटिक प्लांट्स पानी के ज़रिए से सीड्स डिस्पर्स करते हैं। सीड डिस्पर्सल के लिए इनमें बहुत सी एडाप्टेशंस पाई जाती हैं। इनमें मुकम्मल फ्रूट या सीड फ्लोट कर सकता है। इन फ्रूट की बैरूनी तह, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, लाइट टिश्यू पर मुश्तमिल होती है। कुछ केसेस में फ्रूट फूल जाता है। कोकोनट इस तरह के फ्रूट की एक्सीलेंट एग्जाम्पल है। इनमें पेरिकार्प लाइट होती है। फ्लोटिंग सीड्स में लाइट टिश्यूज़ या लार्ज एयर स्पेसेस हो सकती हैं। लोटस फ्रूट में टोरस एक लूज और एयर फिल्ड टिश्यू का बड़ा मास है। ये फ्लोट करते हैं। कुछ सीड्स फ्लोट नहीं कर सकते। ये कभी कभार कम फासले तक फ्लोट कर सकते हैं। Dispersal by animals. There are three ways of seed dispersal by animals. First, some fruits are fleshy. Second, a portion of such fruits is eaten by animals. Third, any dry fruits may adhere to the animals. Fleshy fruits. Fleshy fruits are eaten by animals. The fleshy part of such fruits may be eaten without injury to the seed. In many cases, the seed coat is very hard. एनिमल के ज़रिए से सीड डिस्पर्सल के तीन तरीके हैं। नंबर 1, कुछ फ्रूट्स फ्लैशी होते हैं। नंबर 2, इन फ्रूट्स का कुछ हिस्सा एनिमल्स खा लेते हैं। नंबर 3, ड्राई फ्रूट्स एनिमल की बॉडी के साथ चिमट सकते हैं। एनिमल्स फ्रेशी फ्रूट खाते हैं। इन फ्रूट्स का फ्रेशी पार्ट सीड को नुकसान पहुंचाए बगैर खाया जा सकता है। बहुत से केसेस में सीड कोट हार्ड होता है। स्टोनी सीड. Seed is protected by stony endocarp in drupes. Thus the seed may pass without injury through digestive tract of animal.
Birds are particularly prominent in dispersing the seeds of fleshy fruits. Sometimes they eat the fleshy portion of a fruit and throw the seeds away. Dry fruits are often carried off for food by seed-eating animals. They lose them in one way or another way and leave them to grow. ड्रूस फ्रूट की किस्म है। इनमें सीड सख्त एंडोकार्प की वजह से प्रोटेक्टेड होता है, इसलिए सीड इंजरी के बगैर डाइजेस्टिव सिस्टम पास कर सकता है। बर्ड्स खास तौर पर फ्लैशी फ्रूट के सीड डिस्पर्स करने में बहुत प्रोमिनेंट हैं। बाज़ात ये फ्रूट का फ्लैशी पार्ट खा लेते हैं और सीड को फेंक देते हैं। सीड ईटिंग एनिमल्स ड्राई फ्रूट्स को खुराक के लिए उठा लेते हैं। ये कहीं ना कहीं इन्हें गिरा देते हैं। जहाँ पर ये गिरते हैं वहाँ ग्रो कर जाते हैं। Adhesive fruits. Many dry fruits have hook-like appendages. For example, cosmos, bidens, mimosa pudica, etc. It is fitted for grasping hair of animals. Animals carry them and distribute the seeds. The fruit may be adhered to clothes and dispersed by man. Some seeds and fruits have sticky covering. It adheres to hair of an animal. Feathery appendages are capable of adhering to fur. They may fly on the wind. बहुत से ड्राई फ्रूट्स में हुक लाइक अपेंडेजेस पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर कॉस्मोस, बाइंडन और छुई मुई। ये हुक लाइक अपेंडेजेस की वजह से एनिमल्स की बॉडी पर मौजूद बालों में फंस जाते हैं। ये एनिमल्स के साथ चले जाते हैं और कहीं दूर जा गिरते हैं। कुछ फ्रूट इंसान के कपड़ों के साथ चिमट कर कहीं दूर गिर सकते हैं। कुछ सीड्स और फ्रूट की कवरिंग स्टिकी होती है। ये जानवरों के बालों के साथ चिमट जाते हैं। इसी तरह से फीदरी अपेंडेजेस भी परों के साथ चिमटने में हेल्पफुल हैं। ये विंड से भी फ्लाई कर सकते हैं। Minute seeds. Many plants have minute seeds. They are caught in mud. Thus, these seeds adhere to the feet or other parts of the birds or other animals. The animals disperse them. बहुत से प्लांट्स के सीड्स बहुत छोटे होते हैं। ये अक्सर मड में गिरते हैं और फंस जाते हैं। इस मड में आने वाले जानवर या बर्ड्स के फीट या दूसरे हिस्सों के साथ ये सीड चिमट जाते हैं और इस तरह से जानवर इनकी डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म. मैनी फ्रूट्स explode when ripe and scatter the seeds. This method of dispersal is found in members of bean family. The explosive forces are due to the stresses arising from the drying of walls of the pod. The balsam has somewhat fleshy capsule. These are very turgid. Sometimes these are disturbed by contact. Now these segments of pericarp roll up with considerable forces, therefore they scatter the seeds. An unusual explosive mechanism is found in the sculpting cucumber. बहुत से फ्रूट्स पकने पर फट जाते हैं और इनके सीड बिखर जाते हैं। ये तरीका फलीदार पौधों में पाया जाता है। फली और इसके वॉल्स के खुश्क होने पर ये फटने का अमल होता है। बाल्सम में फ्लैशी कैप्सूल्स पाए जाते हैं। ये बहुत टर्जिड होते हैं। बाज़ औक़ात ये छूने से भी डिस्टर्ब होते हैं। पेरिकार्प के सेगमेंट्स ख़ास फोर्सेस के साथ रोल अप होते हैं और सीड्स को मुंतशिर कर देते हैं। इसी तरह से अनयूजुअल एक्सप्लोसिव मैकेनिज़्म स्कल्टिंग कुकम्बर में भी पाया जाता है। Dear students, here we can see seed and fruit dispersal by wind, water, animals and explosive mechanism. Ecological importance of seed dispersal. First, population of species
established in another biome by seed dispersal. Second, seeds are important source of primary and secondary succession. Third, seeds are food for many herbivores and omnivores, so they play role in food chain. Fourth, dispersal of seed in different places decrease the intraspecific competition among the local vegetation. इकोलॉजिकली सीड डिस्पर्सल बहुत अहम है. नंबर 1, सीड डिस्पर्सल के ज़रिए से स्पीशीज़ की पॉपुलेशन एक और बायोम में एस्टेब्लिश हो जाती है. नंबर 2, सीड्स प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन का इम्पॉर्टेंट सोर्स है. नंबर 3, सीड्स बहुत से हर्बीवोर्स और ऑमनीवोर्स की खुराक हैं और ये फूड चेन में अहम रोल प्ले करते हैं. नंबर 4, मुख्तलिफ जगहों पर सीड डिस्पर्सल लोकल वेजिटेशन में इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कम कर देता है. Seed bank. The storage of seeds in the soil is called seed bank. Seeds fall on the soil. They are buried in the soil. Some seeds germinate to form new plants. Some seeds do not grow and remain dormant. These seeds form the seed bank. Plant seeds can remain dormant for many years. ज़मीन में सीड्स का स्टोर होना सीड बैंक कहलाता है. सीड्स सॉइल पर गिरते हैं और सॉइल में नीचे चले जाते हैं. कुछ सीड्स जर्मिनेट होकर नए पौधे बना देते हैं और कुछ सीड्स ग्रो नहीं करते और डॉर्मेंट रहते हैं. ये सीड्स सीड बैंक बनाते हैं. पौधों के सीड्स कई सालों तक डॉर्मेंट रह सकते हैं. This property of seeds has great significance for the survival of plants. Seed bank has following significance for the plants. Sometimes plants fail to develop sufficient number of seeds due to unfavorable conditions. The seeds from seed bank grow to compensate this deficiency. In this way, population of plants is not affected. सीड्स की ये प्रॉपर्टी प्लांट सर्वाइवल के लिए बहुत अहमियत रखती है. प्लांट्स के लिए सीड बैंक की मंदरजा झैल सिग्निफिकेंसेस हैं. नंबर 1, बाज़ात अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से प्लांट ख़ास तादाद में सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते. सीड बैंक में मौजूद सीड्स ग्रो करके ये कमी पूरी करते हैं. इस तरह से प्लांट पॉपुलेशन अफेक्ट नहीं होती. Second, sometimes unfavorable conditions persist for many years. These conditions are drought, high temperature, alkalinity, salinity, and waterlogging. The land becomes totally unfavorable for vegetation for many years. The seeds are not produced for many years. After unfavorable conditions, the conditions become favorable. Now seeds from seed bank grow and maintain the population of species. Number 2, बाज़ात unfavorable conditions लंबे अरसे तक रहती हैं. इन कंडीशंस में ड्राउट, हाई टेम्परेचर, अल्कलिनिटी, सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग हो सकते हैं. ज़मीन बहुत से सालों तक मुकम्मल तौर पर वेजिटेशन के लिए फेवरेबल नहीं होती. इस वजह से बहुत सालों तक सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं होते. अनफेवरेबल कंडीशंस के बाद फेवरेबल कंडीशंस आती हैं. सीड बैंक में मौजूद सीड्स ग्रो करते हैं और स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को मेंटेन करते हैं. Third, sometimes fire completely destroys the plant, thus they are unable to produce seeds. Seeds from seed bank grow and develop new vegetation. Fourth, seed bank plays an important role in primary succession. Fifth, seed bank regulates the population size of the plant in normal conditions. नंबर 3, बाज़ात फायर प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देती है और ये प्लांट्स सीड प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं रहते.
सीड बैंक में मौजूद सीड ग्रो करके न्यू वेजिटेशन डेवलप करते हैं। नंबर 4, सीड बैंक प्राइमरी सक्सेशन में रोल प्ले करता है। नंबर 5, नॉर्मल कंडीशंस में सीड बैंक पॉपुलेशन साइज को रेगुलेट करता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।